Good morning, students. In the last video, we read about puberty. Now we are going to read further part of human reproduction system. So first of all, sexual characters we can define into the two category, primary and secondary. प्राइमरी यानी फर्स्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर, द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी जब कोई कैरेक्टर्स बच्चे में उसके बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर. Secondary, which are develops at the puberty. The puberty I told you, in the male it start from 13 to 14 years, and in female from 11 to 12 years. So now some of the secondary sexual characters are there in males and in females. So first of all in males, deepening of voice, यानी voice थोड़ी सी harsh हो जाती है. broadening in the area of chest and the shoulder और chest जो area वो थोड़े broad wide हो जाते हैं. height increase into the height normally, ये normal features हैं. then development of muscles, जो that's why जो उनका मेल का वेट होता है it is more than the female, क्योंकि उनमें muscles का development ज़्यादा होता है. Increase in the size of penis and testes. These are the organs of reproductive system. This will be clear in the next part. So first was here you may remember there will be an increase into their size. Production of gamete, because as I told you this is the primary sex organ and it will produce the gamete that is called sperm. Hair growth occur into the armpit area, chest area, facial area and the pubic area. Pubic area means the area between the thighs. It's called pubic area, armpit area and chest area. And enlargement of larynx, that is called Adam's apple. ये जो Adam's apple वाला पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा उभरा हुआ होता है, that बाहर थोड़ा मतलब दूर से ही दिखाई देता है उभरा हुआ पोर्शन. So these are the features in male. As the same some of the features in female, highly pitched voice, थोड़ी तीखी सी आवाज़ होती है. Beginning of menstrual cycle start हो जाता है. Hips वाला एरिया में broadening होती है. Hair growth into the armpit and the pubic area, and then release of gamete from the ovary, primary sex organ, and enlargement of secondary sex organ. अब secondary sex organ कौन कौन से हैं, this we will read. Now first of all we are going to start from the first reproductive system, that is male reproductive system. This system we can for the purpose of study we can divide it into the three parts. Part number 1, primary sex organ. Second part, secondary sex organ. Third part is external genitalia. Primary, which produce gamete, in the male it is testes. Secondary, which helps in the transportation and storage, like epididymis. Vas deferens is also called sperm duct. And accessory glands, some of the glands का मतलब है which produce some types of secretions, and accessory glands helps in this process of reproduction. They produce some types of secretion. And external genitalium मतलब बाहर से जो organ दिखाई दे, rest of the part are inside the body cavity. तो external genitalia है, that is penis. So for reading further, first of all we are trying to understand the location of different organs. So this is the one side, मतलब एक तरफ का पोर्शन है. This one portion you can see, देखो यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी का पोर्शन है. जो टेस्टिस है इट इज़ वन पेयर, तो एक साइड का दिखाई दे रहा है, सेम उस साइड भी होगा. तो ये टेस्टिस है, ये इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ है, ये टेस्टिस है. फिर टेस्टिस के जस्ट ऊपर ये एक छोटा सा पार्ट है, इट्स कॉल्ड एपिडाइडमिस. ये एपिडाइडमिस है. तो टेस्टिस से जो गैमेट बनता है वो यहाँ एपिडाइडमिस में आता है. देन एपिडाइडमिस से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड वास डिफरेंस, और अनदर नेम इज स्पर्म डक्ट. ये वास डिफरेंस इस तरीके से इस मेल गैमेट को कैरी करती है, यहाँ तक आ रहा है. फिर उसके बाद हेयर यू में सी ये एक और डक्ट ज्वाइन कर रही है इसको. दिस डक्ट कम्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर
एंड वी नो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन। तो ये जब डक्ट यहाँ पे एंटर कर रही है एंड इस वाली डक्ट को, यानी जिस स्पर्म डक्ट को ज्वाइन कर रही है, तो ये कॉमन डक्ट बन गई एंड दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एजुकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जब ये डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से आ रही थी तो उसके बीच में ये एक डार्क कलर में एक ग्लैंड दिखाई दे रही है, एक सिंगल ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंगल ग्लैंड है, मतलब एक ही मिलती है। एंड दीज आर टू अनदर एसेसरी ग्लैंड, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल एंड दिस वन इज काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सो ओवरऑल है क्या कि जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकल रहा है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड अपना इनपुट कर रही है, और जो यहाँ से गैमेट निकल रहा है उसमें ये सेमिनल वेसिकल और काउपर ग्लैंड अपना इनपुट डाल रही है, इनमें डाल रही है थ्रू द हेल्प ऑफ डक्ट। तो हम कह सकते हैं ये एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है और एजुकुलेटरी डक्ट। और फिर ये वाला जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का जो पोर्शन है इसको पीनस, और ये बाहर आता है थ्रू द यूरिथ्रा। सो हम यहाँ देख सकते हैं इस यूरिथ्रा से गैमेट भी बाहर निकल रहा है प्लस यूरिन। तो ये यूरिथ्रा जो है इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म। इसी एक कॉमन ओपनिंग से यूरिन भी बाहर निकलेगा एंड स्पर्म भी बाहर निकलेगा, यानी गैमेट भी बाहर निकलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गन। अब इसमें से जो ये टेस्टिस वाला पोर्शन है इट प्रोड्यूस गैमेट, सो इट्स कम्स इनटू द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रेस्ट ऑफ दैट लाइक दिस वन एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल मिलती है, सेमिनल वेसिकल ये वन पेयर है, एक यहाँ पर है, एक जो दूसरे तरफ का टेस्टिस आएगा वो भी इसमें आके ऐड होगा इस तरीके से। एज द सेम काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इट इज ऑल्सो इन वन पेयर, सो दीज आर फाउंड इन द पेयर एंड दिस वन फाउंड इन द सिंगल। इन एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज पीनस। सो दिस इज द ओवरऑल representation of male reproductive system. Now one by one we will read their function. First of all, testis. It is a primary sex organ. It produces gamete. It is located outside the abdominal cavity in a pouch. We can say this is a pouch, and this pouch called scrotum, which function like as a thermoregulator, यानी जो body temperature होता है normally of human body 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 1 to 3 डिग्री सेल्सियस यानी approximately 34 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल या विच इज़ क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इट कैन डिस्ट्रॉय द स्पर्मेटोजेनेटिक टिश्यू, यानी जो स्पर्म बनाने वाले टिश्यूज़ हैं वो 37 डिग्री पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दैट्स वाई जो टेस्टिस है वो इस तरीके से बाहर इस पाउच में लोकेट है, जो पाउच होता है स्क्रोटम। एंड इट ऑल्सो कंटेन सम लीडिंग सेल्स, ये इसमें कुछ अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं। दिस लीडिंग सेल्स सिक्रेट अ मेल सेक्स हार्मोन दैट वी नो दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आफ्टर दिस फ्रॉम हेयर गैमेट्स एंटर्स इनटू द एपिडाइडमिस। इट इज़ द टेम्पररी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म, यानी यहाँ पे फॉर 24 आवर्स तक यहाँ पे स्पर्म स्टोर रह सकते हैं और यहाँ पे नरिशमेंट भी मिलता है टू स्पर्म। Then from here it enters into the vas deferens. It is also called vas deferens is also called sperm duct. Actually ये करती क्या है, ये एपिडाइडमिस से लेकर जाती है गैमेट्स को to the urethra. It transfer the gametes from epididymis to urethra, but in the mid it gets the secretions from urinary bladder which transfer the urine. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट सिक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, एल्कलाइन यानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। एंड दिस एल्कलाइन फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इट न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ यूरिन, यानी जो यूरिन की पीएच होती है वो कम होती है तो उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है। सेमिनल वेसिकल सिक्रेट एनर्जी सोर्स फ्रक्टोस, जो कि गैमेट को एनर्जी देता है, मतलब प्लस नरिशमेंट। एंड दिस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस विच हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, पीनस के लुब्रिकेशन में यानी उसके ईजी मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ से गैमेट निकलेगा प्लस इनका जो सिक्रेशन होता है इट्स कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। गैमेट स्पर्म
plus secretion of accessory gland is called seminal plasma. Together it comes out from the urethra, and the semen plus semen is equal to gamete plus seminal plasma. यानी अगर हम semen की बात करें तो उसमें secretion of accessory gland that is called seminal plasma plus gamete यानी sperm. Penis is external genitalia which helps in the lubrication or during the mating or easy movement of penis. So today we read male reproductive system. I hope this you understood. In the next video we will read about female reproductive system. Thank you.